Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. Today, we are starting with your Long Man New Images, a comprehensive course in English, Class 7th, Chapter 3, and the name of this chapter is Malgudi Cricket Club. The theme of this chapter is Self and Friends. Before starting, let us look at the word for today, that is Excelsior. Originally, an adjective in Latin. Now, this word is an adjective. Adjective means those words that are used to describe a certain thing. For example, she is a beautiful girl. So, beautiful is an adjective. So, it was used as an adjective in Latin. Latin is a language meaning beyond lofty. Now, beyond lofty, something which is beyond lofty, that is excelsior. It is often used as names of hotels or products to indicate supreme quality. See, beyond lofty is something which is very luxurious and very VIP, which is very high quality of. So sometimes this name is used by hotels or by those products which want to indicate that they are of very good quality. In America, now we are shifting from Latin to America. It also refers to wood shavings packed with breakable items or stuffed in furniture. Now in America, it is referred for wood shavings which are packed with breakable items. See, whenever we are doing any online परचेजेस जब वो हमारे घर पे डिलीवर होता है तो प्रोडक्ट के आसपास एक ऐसी पैकेजिंग की जाती है जिसकी वजह से आपके प्रोडक्ट्स ख़राब नहीं होते हैं, टूटते नहीं हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट्स जिसके आसपास वुड छोटी छोटी लकड़ियाँ रखी जाती है उसको पैक करने के लिए, दोज आर ऑल्सो कॉल्ड एक्सेलसियर. Now in the cross connect we have Excelsior was the famous catchphrase of Stan Lee, the creator of Marvel comic books. Now, this was a very, very famous catchphrase of Stan Lee. Now, who is Stan Lee? He is the creator of the Marvel comic book. These comic books are very famous. So, Stan Lee is the creator of those books. To him, it meant upward and onward to great glory. Now, he used this catchphrase a lot. So, what did he meant from this word? Upward and onward to greater glory. When you are going to heights and heights of glory, where you are achieving everything, every success is at your footsteps, then you use this word. A clever sign off to his columns in the mid 1960s, it was also the mantra that governed his life and career. Now, basically, this word was a kind of a mantra that he uses and he works upon it his entire life. His entire life governed or rotated around this word, that is Excelsior. Now, let us read about a group of enthusiastic schoolboys in the idyllic little town of Malgudi in British India planning to start a cricket club. Now, there are a bunch of schoolboys and they are from a very little town. The name of the town is Malgudi, which is located in British India, and they are planning to start a cricket club. उनको एक cricket club start करना है. After making his exit from Albert Mission School in a theatrical manner on the day following the strike, Swaminathan became so consistently stubborn that a few days later his father took him to the board school and admitted him there. Now, after making his exit, his का मतलब यहाँ पे रेफर्ड है स्वामीनाथन को.
तो स्वामीनाथन निकल चुके हैं एल्बर्ट मिशन स्कूल से, वहाँ से उन्होंने टीसी ले लिया है इन अ थिएट्रिकल मैनर। थिएट्रिकल मैनर एक ऐसा मैनर होता है कि शांति से टीसी नहीं लिया है, सबका अटेंशन लेने के बाद उन्होंने टीसी लिया है। और ये टीसी कब लिया है? स्ट्राइक करी होगी उन्होंने उसके जस्ट नेक्स्ट डे पे। हाँ, स्वामीनाथन इतने ज़्यादा स्टबर्न थे, स्टबर्न यानी कि बहुत ज़्यादा ज़िद्दी थे। तो कुछ ही दिनों के बाद उनके जो फादर थे वो उन्हें एक बोर्ड स्कूल में लेके गए और बोर्ड स्कूल में जाकर उनका वहाँ पर एडमिशन करवा दिया। At first, Swaminathan was rather uncertain of his happiness in the new school. अब स्टार्टिंग में जब एक बच्चा अपने नए स्कूल में जाता है तो वो अनसर्टन होता है। अनसर्टन क्यों? वो खुश है नहीं है, न्यू फ्रेंड्स, न्यू टीचर्स, एवरीथिंग न्यू, नथिंग ओल्ड। तो आपको एक थोड़ी अनसर्टनिटी तो रहती है चीज़ों को लेके। But he excited the curiosity that all newcomers do, and found himself, to his great satisfaction, the center of attraction in Second C. Now, what happened was he excited the curiosity. वो उसने अपने अंदर से वो क्यूरियोसिटी निकाली जो सारे न्यू कमर्स को होती है एक नए स्कूल में जाने के बाद। तो उन्होंने देखा कि जब भी, और आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, जब भी आपकी क्लास में कोई न्यू स्टूडेंट आता है तो कुछ टाइम के लिए वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है, सभी लोग उसी पर ध्यान देते हैं। तो ये भी एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुके थे सेकंड सी के। All his new classmates, remarkably new faces, often clustered around him to see him and hear him talk. अब जो न्यू क्लासमेट्स हैं वो इसके आसपास आके खड़े हो जाते थे। क्लस्टर्ड मीन्स वो छोटे छोटे ग्रुप्स में इनके आसपास आके खड़े हो जाते थे, इनको देखना चाहते थे कि ये जो न्यू बॉय है ये कैसा दिखता है और कैसे बातें करता है। He had not yet picked the few that he would have liked to call his chums. Chums means friends. स्टार्टिंग में जब कोई भी न्यू स्टूडेंट आता है वो सभी से बात करता है, देन ही डिसाइड्स उसे किसके साथ अपनी फ्रेंडशिप करनी है। तो अभी तक उन्होंने वो डिसाइड नहीं करा था कि कौन उनके वो फ्रेंड्स बनने वाले हैं। He still believed that his Albert Mission set was intact, though since the reopening in June, the set was not what it had been before. उनका ऐसा मानना था कि जो उनका एल्बर्ट मिशन, जो इनके पुराने स्कूल का सेट था, फ्रेंड्स था, वो कंप्लीट है उनके लिए और वो चेंज नहीं होने वाला है। लेकिन जब जून के टाइम पर, जून के मंथ में स्कूल रीओपन हुए तो वो फ्रेंड्स का ग्रुप वैसा नहीं रहा जैसा वो पहले हुआ करता था। Only Rajam and Mani were still intact as far as Swaminathan was concerned. अब सिर्फ दो ही उसके फ्रेंड्स थे पुराने स्कूल से, एल्बर्ट मिशन से, राजम और मानी। वही दोनों अभी भी स्वामीनाथन से बात कर रहे थे। Mani saw him every day, but Rajam had not spoken to him since the day his political doings became known. अब राजम और मानी दो फ्रेंड्स हैं और दोनों में से मानी तो अभी भी स्वामीनाथन से डेली मिलने के लिए आता है, लेकिन ये जो राजम है, जिस दिन से वो स्ट्राइक हुई थी, इनकी ये पॉलिटिकल जो इन्होंने किया है वो राजम को पता चला, उस दिन के बाद से राजम ने स्वामीनाथन से बात तक नहीं की थी। And now, this afternoon, Swaminathan was sitting in a dark corner of the house, trying to make a camera with a cardboard box and a spectacle lens. अब एक आफ्टरनून की बात है, स्वामीनाथन एक रूम में एक बहुत कॉर्नर में बैठे हुए थे अपने घर के और वो एक कैमरा बना रहे थे कार्डबोर्ड बॉक्स की मदद से और साथ ही में स्पेक्टिकल लेंसेज की मदद से। In his effort to fix the lens in the hole that was one round too large, he was on the point of losing his temper when he heard a familiar voice calling him. अब जैसे ही वो कैमरा बनाते बनाते उस होल के अंदर लेंस को फिट कर रहे थे, वो हो नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे अपना
टेम्पर खोते जा रहे थे, उनका जो पेशेंस था वो ख़त्म होता जा रहा था। इतने में ही एक फेमिलियर यानी कि जानी पहचानी सी आवाज़ उनको सुनाई दी जो उनका नाम ले रहे थे। ही रैन टू द डोर, वो जल्दी से डोर की तरफ भाग कर गए। हेलो हेलो राजम, ही क्राइड, वाई डिडंट यू टेल मी यू वर कमिंग। तो डोर पर था राजम। स्वामीनाथन ने पूछा, हेलो, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया तुम आ रहे हो? वॉट इज द थिंग इन योर हैंड? राजम आस्क्ड। राजम ने पूछा। राजम ने स्वामीनाथन के क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया। राजम ने एक और क्वेश्चन पूछा, तुम्हारे हाथ में क्या है? ओ इट इज नथिंग, स्वामीनाथन सेड, गिविंग हिम द बॉक्स। स्वामीनाथन वो कार्डबोर्ड बॉक्स अपने हाथों से राजम को दे भी रहे हैं और साथ में ये भी बोल रहे हैं, अरे ये तो कुछ नहीं है, ऐसे ही है। Rajam said, while gazing at the world through the hole in the cardboard box, that he was prepared to forgive Swaminathan for his past mistakes and would not mind his belonging to the board school. They were to be friends as of old. राजम उस कार्डबोर्ड बॉक्स से देख रहा था और साथ ही में उसने ये भी बोला कि वो स्वामीनाथन ने जो पहले गलतियां करी हैं उसे भूलने को रेडी है, उसके लिए उसे माफ़ करने को रेडी है और वो ये माइंड भी नहीं करता है कि वो अब एक बोर्ड स्कूल को बिलोंग करता है और वो जैसे पहले फ्रेंड्स थे वो अभी भी वैसे ही फ्रेंड्स रहने वाले हैं। What would you say to a cricket team? राजम asked. राजम ने पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है एक क्रिकेट टीम को लेके? नो राजम, आई डोंट थिंक आई कैन प्ले, आई डोंट नो हाउ टू प्ले। स्वामीनाथन ने बोला कि मुझे नहीं लगता कि मैं खेल पाऊँगा बिकॉज मुझे ये पता ही नहीं है ये गेम खेलते कैसे हैं। दैट इज़ वॉट एवरीबडी थिंक्स, सेड राजम। आई डोंट नो हाउ माई सेल्फ दो आई कलेक्ट पिक्चर्स एंड स्कोर्स। राजम ने बोला, यही शायद सब लोग बोलते हैं और सोचते हैं, मुझे खुद को ये गेम खेलना नहीं आता है, मैं सिर्फ पिक्चर्स और स्कोर्स कलेक्ट करता हूँ। दिस वॉज वेरी प्लीजिंग टू हेयर। अब ये सुनने में तो इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि हम लोग खुद का एक क्रिकेट टीम बनाएंगे। Probably Hobbs too was shy and skeptical before he took the bat and swung it. Now ये क्या बात कर रहे हैं कि हॉब्स भी शायद स्टार्टिंग में इतना ही शाय होगा, इतना ही शर्मीला होगा और उसको भी ऐसे ही डाउट्स आते होंगे कि वो ये कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, बट फिर उसने बैट लिया और उसको घुमाना स्टार्ट कर दिया। We can challenge a lot of teams, including our school 11. They think they can't be beaten, said Swaminathan. स्वामीनाथन ने बोला, एक बार अगर हमारी क्रिकेट टीम बन जाती है तो फिर हम बहुत से दूसरे टीम्स को चैलेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि हमारी स्कूल 11। उनको लगता है कि उनको कोई हरा नहीं सकता। What? The board school must think that? We shall thrash them. Oh yes. अब राजम क्या कह रहे हैं कि क्या बोर्ड स्कूल मग्स मीन्स वो स्टूपिड लोगों को ऐसा लगता है कि वो उनको कोई हरा नहीं सकता। वी विल थ्रैश देम, हम उन्हें हरा के दिखाएंगे। व्हाट शैल वी कॉल इट, हम इसे क्या नाम देंगे? डोंट यू नो इट इज़ द MCC, सेड राजम। राजम ने बोला, इसको MCC बोलते हैं। दैट इज़ हॉब्स टीम इजंट इट? दे मे ड्रैग अस बिफोर अ कोर्ट इफ़ वी टेक देयर नेम। अब इन्होंने बोला कि अगर हम लोग उनका नाम ले लेंगे तो फिर वो हमें कोर्ट में लेके जाएंगे। Who says that? If we get into any trouble, I shall declare before the judge that MCC stands for Malgudi Cricket Club. MCC altogether हॉब्स की टीम का नाम था, लेकिन इन्होंने सोचा ये सेम नाम लेंगे और अगर वो इनको कोर्ट में लेके जाते हैं कि इन्होंने हमारा नाम ले लिया है तो ये जज के सामने बताएंगे कि MCC का मतलब है मालगुडी क्रिकेट क्लब। स्वामीनाथन was a little disappointed, though as MCC it sounded imposing. The name was really a bit tame.
इनके हिसाब से एमसीसी नाम इम्प्रेसिव तो था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा टेम था, यानी कि इनको इतना ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा था वो नाम. आई थिंक वी हैड बेटर ट्राई सम अदर नेम राजम. स्वामीनाथन ने सजेस्ट करा कि क्या हम लोग कोई नया नाम भी रख सकते हैं क्या, मुझे ये नाम इतना अच्छा नहीं लग रहा है. वॉट शुड वुड यू सजेस्ट, तुम क्या सजेस्ट करते हो. वेल, आई एम फॉर फ्रेंड्स 11. कि स्वामीनाथन ने सजेस्ट करा कि हम फ्रेंड्स 11 भी रख सकते हैं. फ्रेंड्स 11 और से जंपिंग स्टार्स, सेड स्वामीनाथन. तो स्वामीनाथन ने दो ऑप्शंस दिए, या तो फ्रेंड्स 11 रख लो, वो भी बहुत अच्छा नाम है, या फिर जंपिंग स्टार्स. ओह दैट इज़ नॉट बैड यू नो. राजन को भी नाम अच्छा लगा कि हाँ ये इतना बुरा भी नहीं है. I do think it would be glorious to call ourselves jumping stars. राजम ने बोला, हाँ मैं भी सोच रहा हूँ अब, तो मुझे लग रहा है कि जब लोग हमें जंपिंग स्टार्स बोलेंगे तो कितना अच्छा लगेगा. Rajam instantly had a vision of a newspaper report. The jumping stars soundly thrashed the board high school 11. राजम ने अपने दिमाग में इमेजिन भी कर लिया कि जब वो मैच जीतेंगे तो न्यूज़पेपर में एक रिपोर्ट आएगी और उसकी हेडलाइन ये रहेगी. इट इज़ अ ब्यूटी आई थिंक, ही क्राइड, मूव्ड बाय द विजन. विजन होता है एक आइडिया, एक इमेजिनेशन जो आप अपने फ्यूचर के लिए खुद सेट करते हो. He pulled out a piece of paper and a pencil and said, "Come on, Swami, recite the names that come to your head." अब वो चाहता था कि जो आपके दिमाग में ये नाम आया है आप उसको रिसाइट करो, यानी कि उसको हमें बताओ. It would be better to have a long list to select from. We shall underline jumping stars and MCC and give them special consideration. Come on. अब राचम वॉन्ट्स कि जो भी स्वामीनाथन के माइंड में ये अलग अलग नेम्स के ऑप्शंस आ रहे हैं वो उन्हें एक जॉट डाउन कर लें, एक पेपर पे लिख लें, सो दैट उनके पास लास्ट में ऑप्शंस रहे जिनमें से वो सिलेक्ट कर सकते हों. स्वामीनाथन remained thoughtful and started. Friends 11, Jumping Stars, Friends Union. एक एक करके स्वामीनाथन ने सारे नाम बताते गए और ये एक पेपर पे राजम नोट डाउन उनको करते रहे. I have Friends Union here already, Rajam said, pointing to the list. Swaminathan went on. Excelsiors. एक एक करके उन्होंने नाम लिखते गए. I have got it. Excelsior Union, Champion 11. A long pause. Are you dried up? Rajam asked. Dried up means क्या अब तुम्हारे माइंड में और कोई नाम नहीं आ रहे हैं? No, if Mani were here, he would have suggested a few more names. Champion 11. अब स्वामीनाथन के माइंड में आया कि अगर मानी भी यहाँ होता तो वो भी अपने अपने कुछ सजेशंस तो ज़रूर देता. You have just said it. Victory Union 11. That is very good. I think it is very, very good. People would be afraid of us. अब राजम को कौन सा नाम अच्छा लगा? लास्ट वाला, विक्ट्री यूनियन 11. उसने सोचा कि लोग हमसे डरेंगे इस नाम से. He held the list before him and read the names with great satisfaction. उसने अपने सामने वो लिस्ट रखी और फिर एक एक नाम को बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन के साथ वो रीड करते गए. He had struggled hard on the previous night to get a few names, but only Friends Union and Excelsiors kept coming till he felt fatigued. एक दिन पहले रात को उन्होंने काफ़ी मेहनत करी थी अलग अलग नेम्स सर्च करने में, लेकिन उनके माइंड में सिर्फ दो ही नाम आए थे, फ्रेंड्स यूनियन और एक्सेलसियर्स. उसके बाद वो थक गए थे. बट वॉट अ लॉट ऑफ नेम्स स्वामीनाथन वॉज एबल टू रील ऑफ यानी कि इतनी जल्दी स्वामीनाथन ने कितने सारे अलग अलग नाम सर्च करके दे दिए हैं. कैन यू मीट मी टुमारो इवनिंग स्वामी? I shall get Mani down. Let us select a name.
अब राजम ने सजेस्ट करा कि कल तुम मुझे मिलो इवनिंग के टाइम पे, मैं मानी को भी बुला लूँगा और फिर हम तीनों मिलकर एक अच्छा सा नाम फाइनलाइज कर लेंगे। आफ्टर अ while, Swaminathan asked, "Look here, do you think we shall have to pay tax or something to the government when we start the team?" अब स्वामीनाथन के माइंड में क्या क्वेश्चन आया कि अगर हम एक टीम स्टार्ट करते हैं तो क्या हमें गवर्नमेंट को टैक्स भी देना पड़ेगा क्या? The government seems to tax everything in this world. My father's pay is about 500, but nearly 200 and over is demanded by the government. Anyway, what makes you think that we shall have to pay tax? राजन का आंसर था कि गवर्नमेंट हर चीज़ पर टैक्स तो लेती है। मेरे फादर का जो सैलरी है वो है 500 और 200 प्लस तो गवर्नमेंट ही डिमांड कर देती है टैक्स के फॉर्मेट में। लेकिन तुमने ये क्यों पूछा हमें टैक्स देना पड़ेगा? I mean, if we don't pay tax, the government may not recognize our team or its name, and 100 other teams may take the same name. It might lead to all sorts of complications. अब स्वामीनाथन का डाउट था कि अगर हमने गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं करा तो वो हमारी टीम को रिकग्नाइज नहीं करेगी और हमारा ही नाम लेकर बहुत सी और भी टीम्स बन सकती हैं, जिसकी वजह से बाद में जाकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आ जाएगा। Suppose we have two names, asked Rajam. It is not done. I knew a lot of teams that have two names. When I was in Bishop Wallers, we had a cricket team that we called, I don't remember the name now. I think we called it Cricket 11 and Wallers Cricket 11. You see, one name was for ordinary use and the other was for matches. अब स्वामीनाथन ने बताया कि जब मैं बिशप वॉलर्स में था तब हमारी टीम थी क्रिकेट टीम और उसके दो नाम थे, एक ऑर्डिनरी यूज़ के लिए और एक क्रिकेट मैचेस के टाइम पर यूज़ करने के लिए, बट उससे कुछ खास फ़ायदा नहीं हुआ था। इट इज़ ऑल वेरी वेल फॉर अ रिच टीम लाइक योर वॉलर्स, बट सपोज द गवर्नमेंट डिमांड्स टू टैक्सेस फ्रॉम अस। अब राजम का क्वेश्चन भी वैलिड था कि अगर हमने दो नाम रख लिए तो ऐसा नहीं हो जाए गवर्नमेंट हमसे दो दो बार टैक्स ले ले दो नाम रखने के लिए। Rajam realized at this point that the starting of a cricket team was the most complicated problem on earth. अब राजम को ये फील होने लग गया था कि क्रिकेट टीम बनाना इतना आसान काम नहीं है। He had simply expected to gather a dozen fellows on the मैदान next to his compound and play and challenge the world. राजम ने जो पहले सोचा था वो यही था कि वो कुछ डज़न लोगों को बच्चों को अपने साथ इकट्ठा कर लेगा ग्राउंड पे और फिर एक दूसरी टीम को चैलेंज करेगा और ये बहुत इजी होने वाला है। बट हियर वर एंडलेस ट्रबल्स स्टार्टिंग विद द नेम दैट मस्ट बी यूनिक, गवर्नमेंट टैक्सेस एंड सो ऑन। लेकिन अब जब हम क्रिकेट टीम खोलने के एकदम सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस देख रहे हैं तो पता चल रहा है कि यूनिक नेम भी सर्च करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को टैक्स भी देना पड़ेगा और भी बहुत कुछ। They sat around Rajam's table in his room. Mani held before him a catalogue of Messrs. Binns, the shop for sports goods. He read, Junior Willard bats, 7/8, made of finest seasoned wood, used by Cambridge Junior Boys 11. अब राजम के घर पर वो एक उनके रूम में एक टेबल के आसपास बैठ जाते हैं और मानी अपने हाथ में एक कैटलॉग रखते हैं। कैटलॉग एक कंप्लीट लिस्ट होती है एक आइटम्स की जो कि एक शॉप आपको प्रोवाइड करती है और ये उसमें से देख रहे हैं बिकॉज अगर क्रिकेट टीम खोलना है तो आपको क्रिकेट बैट्स चाहिए, बॉल्स चाहिए, विकेट्स चाहिए, तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस उनको मिले हैं। Let me have a look at it, said Rajam. He bent over the table and said, Seems to be a fine bat. Have a look at it, Swami. अब वो जिस बैट की बात कर रहे थे वो कैम्ब्रिज जूनियर बॉयज़ 11 भी यूज़ कर रहे थे। तो राजम ने थोड़ा झुककर देखा और उसके बाद स्वामी को बोला, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, तुम भी देखो। Swaminathan craned his neck and agreed that it was a fine bat, but was indiscreet enough to say it looks like any other bat in the catalogue. स्वामीनाथन भी आगे आया, उन्होंने अपनी गर्दन झुकाई और उस बैट को देखा
उन्होंने बोला लग तो अच्छा रहा है, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी बोला कि जितने भी कैटलॉग्स में दूसरे बैट हैं ये वैसा ही तो दिख रहा है, इसमें ऐसा कुछ स्पेशल कुछ अलग से नहीं दिख रहा है. Mani's left hand shot out and held his neck and pressed his face close to the picture of the bat. Why do you pretend to be a cricket player if you cannot see the difference between Junior Willard and other bats? मानी ने स्वामीनाथन को नेक से पकड़ा और फोटो के पास और लेकर गया कि तुम अपने आप को एक क्रिकेट टीम का प्लेयर कैसे कह सकते हो जब तुम्हें एक जूनियर विलर्ड बैट और दूसरे बैट्स में कोई डिफरेंस ही नज़र नहीं आ रहा है. तो यू आर नॉट fit to be even a cleaner on our team. After this admonition, the hold was relaxed. मानी ने बोला तुम्हें तो हमारे यहाँ पर सफाई करने के लिए भी नहीं रखेंगे. आफ्टर दिस एडमोनिशन एक वार्निंग होती है. उसने उसका गला छोड़ दिया. There was a pause. Then Rajam said, "Note it down, Swami." Swaminathan noted down on a paper, "Willard Junior Bat," and looking up asked, "How many?" "Say 3. Will that do, Mani?" "Why waste money on 3 bets? 2 will do." अब वो ये लोग डिसाइड कर रहे हैं कि कितने बैट्स में काम हो जाएगा. तो स्वामीनाथन ने लिखना शुरू कर रहा है विलर्ड जूनियर बैट. फिर उसने पूछा कितने ऑर्डर करने हैं, तो उन्होंने बोला 3. Why waste money on 3 bats? 2 will do. लेकिन अब इन्होंने साथ में ये भी बोला 3 पर क्यों पैसा वेस्ट करना है, 2 से भी काम हो जाएगा. But suppose one breaks in the middle of a match, Rajam asked. राजम ने सोचा अगर एक मैच के बीच में अगर बैट खराब हो गया, टूट गया, तो हमारे पास एक और तो होना चाहिए. Do you suppose we are going to supply bats to our opponents? They will have to come provided with bats. We must make it clear. तो उन्होंने बोला कि हमको क्या, हमारे ओपोनेंट्स जिनको हम चैलेंज करेंगे उन्हें भी हमें बैट प्रोवाइड करना है. हम उन्हें पहले से बोल देंगे अपना बैट खुद लेकर आओ. Even then, if our bat breaks, we may have to stop playing. लेकिन फिर भी अगर हमारा ही बैट टूट गया तो हमें फिर गेम को रोकना पड़ेगा. 2 will do, Rajam, unless you want to waste money. अब ये तो क्लियर हो गया कि ठीक है 2 से काम हो जाएगा, वरना तो फिर अगर ज़्यादा मंगवाना है मतलब पैसे ही वेस्ट हैं. Rajam's enthusiasm was great. He left his chair and sat on the arm of Mani's chair, gloating over the pictures of cricket goods in the catalogue. अब राजम अपनी चेयर से उठा और मानी के चेयर पे आर्म पर आकर बैठ गया. एंड ही वॉज ग्लोटिंग ओवर, ही वॉज टेकिंग ग्रेट प्लेजर. वो उन पिक्चर्स को देख रहा था कैटलॉग में. स्वामीनाथन, though he was considered to be a bit of a heretic, caught the enthusiasm and perched on the other arm of the chair. अब स्वामीनाथन, he thought to be heretic. Heretic is a person who holds belief or an opinion that strongly disagrees with what most people believe. अब अभी वो कंफ्यूज थे कि 2 मंगवाने 3 मंगवाने हैं. तो जैसे ही राजम मानी की चेयर आम पे बैठा और कैटलॉग को देख रहा था, वैसे ही स्वामीनाथन भी मानी के चेयर आम पे बैठ गया और वो भी देखने लग गया. All the 3 devoured with their eyes the glossy pictures of cricket balls, bats and nets. तीनों बहुत इंटरेस्ट और एंथुजियाज्म के साथ वो कैटलॉग देखने लगे. In about an hour, they selected from the catalog their team's requirements. 1 घंटा हो चुका था और उन्होंने अपने टीम के लिए जो जो भी रिक्वायरमेंट थी वो सारी वहाँ से सिलेक्ट कर ली थी. And then came the most difficult part of the whole affair, a letter to Messrs. Binns, ordering goods. अब आइटम तो सिलेक्ट कर लिया, लेकिन अब उन्हें एक लेटर लिखना था जिसमें वो ये सारी चीज़ें मेंशन करेंगे और ऑर्डर करेंगे. Bare courtesy made Rajam offer the authorship of the letter to Mani, who declined it. सबसे पहले सबने मानी को बोला लेटर लिखने के लिए, लेकिन उसने मना कर दिया. Rajam took up the task himself. Half an hour later, he placed on the table a letter. तो राजम ने बोला ठीक है मैं खुद लेटर लिखता हूँ, और हाफ एन आवर के बाद उन्होंने लेटर टेबल पे रख दिया. लेटर इस तरह रीड करता है, फ्रॉम MCC,
and Victory Union 11, Malgudi, to Messrs. Binns, Sportsmen, Mount Road, Madras. Dear Sir, please send to our team 2 junior Willard bats, 6 balls, wickets, and other things quick. It is very urgent. We shall send you money afterwards. Don't fear. Please be urgent. अब उसने लेटर में एकदम क्लियर लिखा था कि हमें ये सारी चीज़ें दे दो, हम पैसे बाद में देंगे और आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. This letter received Swaminathan's benedictions, but Mani expressed certain doubts. अब स्वामीनाथन को ठीक लगा ये लेटर, लेकिन मानी को कुछ डाउट्स आए. He wanted to know whether dear could stand at the beginning of a letter to a perfect stranger. How can you call Binns dear sir? You must say sir. अब मानी को डाउट थे कि एक आप अननोन स्ट्रेंजर को डियर करके नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो आप सिर्फ सर लिखो. Rajam's explanation was, I won't say sir. It is said only by clerks. I'm not Bin's clerk. I don't care to address him as sir. So this letter went as it was. राजम का आंसर था कि जो क्लर्क्स होते हैं बिन्स के, वो ही उनको एज सर रिप्रेजेंट करते हैं और हम तो क्लर्क्स नहीं हैं, इस वजह से मैंने उनको डियर सर करके रिप्रेजेंट करा है. और विदाउट एनी चेंजेस वो लेटर उन लोगों ने पोस्ट कर दिया था. सो दैट्स ऑल. दिस वॉज रिटन बाय R.K. Narayan. I hope you understood it. If you're having any doubts, you can write me in the comment section below. Thank you so much. Keep watching.